Hello friends, myself Sindhu Yadav and I am going to present my topic COVID-19 redefining the word development. Basically, my topic. So, the second graph will show about the radioactive forcing activation effects. Uh, is it showing that how fair or good or poor is the emission of these gases impact the environment? And third is the remote sensor of area of the world, which is emphasizing about what type of emission effect is showing at this moment on the earth. Next. Here I am emphasizing about some tragedies due to anthropogenic activities that happened on, on some back years. तो कुछ समय पहले जो हम लोग के साथ हुआ वो मैं आपको एक बार यहाँ पे समराइज करने की कोशिश कर रही हूँ. On 26 April 1986, Chernobyl nuclear disaster Ukraine take place और इसमें लगभग 1,25,000 people जो थे वो मर गए थे. ये एक न्यूक्लियर डिजास्टर था जिसमें न्यूक्लियर पावर में गैस लीकेज हुआ जिसके कारण जो है ये सारी चीजें जो है वो हमारी हो गई. So, the second graph will show about the radioactive forcing activation effects. Uh, is it showing that how fair or good or poor is the emission of these gases impact the environment? And third is the remote sensor of area of the world, which is emphasizing about what type of emission effect is showing at this moment on the earth. Next. Here I am emphasizing about some tragedies due to anthropogenic activities that happened on, on some back years. तो कुछ समय पहले जो हम लोग के साथ हुआ वो मैं आपको एक बार यहाँ पे समराइज करने की कोशिश कर रही हूँ. On 26 April 1986, Chernobyl nuclear disaster Ukraine take place और इसमें लगभग 1,25,000 people जो थे वो मर गए थे. ये एक न्यूक्लियर डिजास्टर था जिसमें न्यूक्लियर पावर में गैस लीकेज हुआ जिसके कारण जो है ये सारी चीजें जो है वो हमारी हो गई. Is not concerned with the disease COVID-19. My views are emphasizing about the thinking power of the human beings, the thinking power of our society, the thoughts, the misconceptions that had been generated in our society about the word development. Basically, what does the first thing stuck in your mind whenever you heard the word development? Most of the people thought that development is concerned with the construction of building materials, with the construction of highways, with the construction of flyovers, with the construction of industrial area, with the development of industrial area. So the development world is basically emphasizes in our society about the development of this concrete jungle only. But in my views, we all have to rethink about that what the word development really means. Development should not and must not be consigned only with the development of the physical conditions, physical environment around us, but it should be emphasized strictly on the development of human beings, not on the terms of physical development, but on the terms of its mental development, its psychological development. Development should not be concerned with not only
should not be concerned with the development of concrete jungle, but it should be concerned with the development of one's mind, development of one's thought, the development of one's thinking power, development of it should be emphasizes on development of one views also. This is the abstract what I had written about this changing environment, this pandemic condition, or under this pandemic condition. What I think a man should, a human society should think. COVID-19 has changed the thinking power of human. बेसिकली क्या किया है इसने, हम लोग को स्टॉप कर दिया है, हम लोग को स्टॉप कर दिया है, ये सोचने के लिए हम लोग को टाइम दिया है, ये सोचने के लिए कि what we are and where we are standing. The geographical conditions of Earth varies with the dimension at different longitudes and latitudes. हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में या लैटिट्यूड में बढ़ते चले जाते हैं, the geographical conditions of each and every country changes. अगर हम यूएसए ही देखें तो the most of the time they face the cold weather. अगर हम रशिया की देखें तो they feel a different type of weather. जापान की देखें वहाँ की डिफरेंट है, और जब हम इंडिया के वेदर कंडीशंस पे आते हैं तो इट इज़ टोटली डिफरेंट. तो जैसा जैसा उनकी डायमेंशंस होती हैं, जैसे उनकी लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे उनके एल्टीट्यूड होते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, वैसे ही वहाँ पे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज उन्हें मिलते हैं, और वैसे ही कंडीशन में वो लोग रहते हैं. उनका बॉडी पॉस्चर जो है, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसी तरह से सेटअप हो जाती है, और उसी तरीके से उनका फीडिंग हैबिट हो जाती है, उनकी फूड इनटेक की हैबिट हो जाती है, उनका डे टू डे रूटीन हो जाता है, और जिस तरह की क्रॉप कल्टीवेशन वहाँ पे होती है उसी तरह का जो है फूड वो लोग खाते हैं. हम लोग के यहाँ इंडियन कल्चर में एक बात कही जाती है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि whatever we eat that we are in our thoughts. तो कहने का अर्थ है कि जैसा हम खाना खाते हैं वैसा ही हम बोलते हैं. तो ये सारी चीजें जो है हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन से, हमारे फीडिंग हैबिट से हम लोगों में आती है. The environmental laws of each country should be different from each other depending on the environmental resources and human habits. जिस तरह की environmental conditions वहाँ पर हैं, जिस तरह के resources वहाँ पर हैं, उसी तरह के laws वहाँ पे बना जाते हैं. कहीं पे ocean area ज़्यादा है, coastal areas ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोस्टल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉज बनाए जाते हैं. कहीं पे फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं 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 पर जो है रिवर्स ज़्यादा है वहाँ, तो वहाँ पर कहीं पर माइनिंग ज़्यादा होती है, तो उसी तरह के लॉज वहाँ पे बनाए जाते हैं. Our ancestors followed certain rules or myths to protect environment, but due to westernization, we took them as myth and left them as superstitious thing. हमारे पूर्वजों ने इंडिया में जो हमारे पूर्वज रहे, उन लोगों ने हर चीज को कोरिलेट करने की कोशिश की, हर चीज को उन्होंने इन्वायरमेंट से कोरिलेट करने की कोशिश की. जैसे कि हम लोग के यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे मनाए जाते हैं जहाँ पर हम लोग अपने ट्रीज की पूजा करते हैं. जैसे कि बड़मावस होता है, जैसे पीपल की पूजा की जाती है सैटरडे में, जैसे तुलसी की पूजा की जाती है, और इन प्लांट्स को घर में इम्प्लांटेशन के लिए फोर्स किया गया है. शमी की पूजा की जाती है. तो और उसी तरीके के जैसे मिथ्स बना दिए गए, लेकिन इन सब चीज़ों को जो है बाद में हम लोगों ने सुपरस्टिशियस चीज़ों में, अंधविश्वास के रूप में हम लोगों ने मानना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर मूव. हम लोग वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते चले गए, और वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करते करते हम लोग कितना आगे आ गए, कितना अपने कल्चर को हम लोगों ने डिस्ट्रक्ट कर दिया, ये सोचने का भी हम लोग को मौका नहीं मिला. और हमारे जो ऑफस्प्रिंग है वो भी आज के टाइम में भी वो वेस्टर्नाइजेशन में इतना एम्फसाइज होते चले जा रहे हैं, जबकि जो वेस्टर्न वाले हैं, जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले, जिनका कल्चर ही वेस्टर्नाइजेशन का है, दे आर फॉलोइंग आवर इंडियन कल्चर, दे आर वर्शिपिंग कृष्णा कृष्णा नाउअडेज. तो ये सारी चीजें हम लोगों के अंदर चली जाती गई, जो हमारी थॉट्स को, हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने छुपाने के चक्कर में उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया. बट दे आर मोर undeveloped countries than us. Their mental status is not as much developed as ours. After second or 5-year plan, industrialization flourished our country. तो यही था वेस्टर्नाइजेशन के केस में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने
इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस कराया डॉक्टर जे.एल. नेहरू ने, डॉक्टर जे.एल. नेहरू जी ने. The best way to understand and protect nature is to form those rules that follow culture and can resist in our environments. But उस समय भी कोई भी इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता था, जिसकी वजह से कहीं पर इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने से पहले उस लोकल एरिया के फिजिकल कंडीशंस को स्टडी किया जा सके. Word development should not be defined as construction of complete jungle, but defined, actually I have to write, but redefined as the enlargement of one's vision to understand that development of brain must be there. कुछ लोगों ने, कुछ इंसानों ने इवोल्यूशन के साथ साथ, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, कुछ इंसानों ने इवोल्यूशन के साथ साथ अपनी सेल्फिशनेस को भी डेवलप कर लिया, और उस डेवलपमेंट में ये लोग इतना आगे बढ़ गए कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इन लोगों ने कहीं भी इंडस्ट्रीज को ले आउट करा दिया. Revised issue of all the acts should be published based on current scenario and taught to the students from the primitive stage. A kid should learn the values of nature, the limit of exploitation of natural products, the sustainable development from its childhood. ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो है सब चीज़ें बच्चों को जो है बड़े होने के बाद सिखाएं, क्योंकि एक बार जब पेड़ का तना जब बड़ा हो जाता है तो उसे मोल्ड करके एक शेप में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. जिस तरह से कुम्हार का एक बर्तन पकने के बाद सिर्फ टूट ही सकता है, उसी तरह से एक मैच्योर बंदे को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है. तो इसलिए अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस की आज हम बात कर रहे हैं, आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट हमें एक बच्चे को फ्रॉम द एज, वेरी अर्ली एज ऑफ इट्स चाइल्डहुड सिखाना चाहिए. जब वो स्टार्टिंग में स्कूल ज्वाइन करता है या घर पर ही हमें इस तरह की उनको नॉलेज देनी चाहिए. Environment-friendly school should be developed in such a way that the literature should be left in black and white only. इस तरह से डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए कि हमारा जो है लिटरेचर सिर्फ किताबों में ना लिखा जाए, बट इट कैन बिकम द हैबिट ऑफ द इंडिविजुअल. वो एक इंडिविजुअल की, एक ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान की हैबिट जो है बन जानी चाहिए. तो हमें इस तरह की शिक्षा अपने बच्चों को देनी है कि वो फ्रॉम द फर्स्ट एज ऑफ एजुकेशन वो उस चीज को सीखे, वो एनवायरनमेंट के साथ रहना सीखे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सीखे. ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हैं जिस तरह की लर्निंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे कि बाली में है. वो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कूल्स उन लोगों ने डेवलप किए हैं एंड द स्कूल्स आर वेरी वर्किंग वेरी गुड. ये इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट का. अगर हम बात करें, द अर्थ वाज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, और at that time it was just like a fireball. और जैसे जैसे वहाँ का atmospheric condition changes, the rain water occurs for millions and millions years, and after nearly 1 billion after the origin of Earth, nearly about 3.5 billion the life forms are originated. The small tiny particles of living beings are originated underwater. Uh, those particles are known as conservates. Those particles are proved by the experiment of Stanley Miller that life is originated under the water, and these particles, the conservates, the lipid protein content particles are originated under the water, and from there life is moved toward the land. अगर हम प्लांट्स की बात करें, फर्स्ट लिविंग सेल, the cyanobacteria are formed under the water. The bacterial cells are formed under the water. These cyanobacteria converted are the best example of cyanobacteria is as a plant creature is the Chlamydomonas. Chlamydomonas आज भी cyanobacteria कैटेगरी में आता है, जिसे हम एल्गी में रखते हैं. और ये एल्गी फर्दर कन्वर्टेड themselves and adapted themselves towards the land. और इसमें ब्रायोफाइटा आ गए फिर भी, जिसके कारण एल्गी से ब्रायोफाइटा का डेवलपमेंट हुआ. ब्रायोफाइटा से टाइडोफाइटा बने, टाइडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म बने. जिम्नोस्पर्म आर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स इन विच xylem ट्रेकीज आर फाउंड. और उसके बाद हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट बने. दोज आर टोटली नोन एज land terrestrial true terrestrial plant.
एंड दे फ्लरिश सो मच। और आज हमारे चारों तरफ से हम देखते हैं जिसे हम ग्रीन वेजिटेशन बोलते हैं, जिसे आज हम ग्रीन लंग्स बोलते हैं, दोस ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, और वो सारे के सारे आज हमारा जो है एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छा योगदान कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम एनिमल किंगडम के डेवलपमेंट देखें तो एनिमल किंगडम में भी सबसे पहले हमारे साइनोबैक्टीरिया बने, साइनोबैक्टीरिया से प्रोटोजोन्स, देन प्रोटिस्ट, है ना, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते चले गए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉलीफर्स बने, देन एव्स बने, एम्फीबियंस बने, और उसके बाद हमारे ये एनालिड्स बने, रेप्टाइल्स बने, एंड देन फर्दर डेवलप होते हुए वो मैमल्स पे आके ये इवोल्यूशन साइकिल आके रुक गई। और मैमल्स में भी द टॉप मोस्ट मैमल ऑफ दिस अर्थ, द ह्यूमन बीइंग, डेवलप हुआ। और इसके साथ ही द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन अकर्स देयर, और जैसे ही दिमाग की उत्पत्ति हुई, ब्रेन की उत्पत्ति हुई, तो इस ह्यूमन ने स्टार्टिंग में इस नेचुरल इन्वायरमेंट को, इस नेचर को अपने लिए सपोर्टिव पाया, और उस सपोर्ट को ये लगातार यूज करता रहा, और यूज करते करते अपने सेल्फिशनेस के कारण, अपनी आदतों के कारण, अपने आलसीपने के कारण इसने the topmost animal of this animal kingdom started deconstructing the earth. उसने इस नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इट स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द अर्थ, द नेचुरल रिसोर्सेज, और उसे कब खुद को नहीं पता चला कि अब वो किस लेवल तक उसे एक्सप्लॉइट कर चुका है। These are the some graphs that are showing that how much destruction had been held up to 2020. तो पहला ग्राफ है, ये ग्रीन हाउस गैस की डोमिनेशन दिखा रहा है कि 2015 is declared as the hottest year. Why it is recorded as the hottest year? Because the emission of carbon dioxide is at the top of the world. इतना ज्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा था। आप देखिए इस ग्राफ में, फर्स्ट ग्राफ में आपको दिख रहा है कि इट इज एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये एमिट कर रहा है लगातार। हो गई 7th सेंचुरी में इसी तरह के कुछ इफेक्ट्स आए, जैसे कि प्लेग आया यूरोप में, जैसे 100 मिलियन और पॉपुलेशन डेथ की तरफ चली गई। 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ यूरोप के रूप में 60% पॉपुलेशन डाई हो गई थी। इसी तरह से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया में हुआ, जिसके बारे में आप सभी को पता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस की लीकेज हो गई थी, और जिसके कारण लगभग 22,000 डेथ जो थी वो आ गई थी, और सालों तक लोग इसके इफेक्ट में थे। वहाँ पे जो बेबीज बर्थ ले रहे थे उनके एनल ओपनिंग्स पर इफेक्ट था, उनकी नेजल ओपनिंग पर इफेक्ट था, और बहुत सारे म्यूटेशनल कंडीशंस उन बच्चों में पाए जा रहे थे। 1950 से 1960 में मिनामाटा डिजीज जापान में फैली। हम सभी को पता है कि मिनामाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय मरकरी पॉल्यूशन, पॉइजनिंग के कारण होती है। मिथाइल मरकरी जो थी जापान की एक केमिकल फैक्ट्री चिसो कॉर्पोरेशन से लीकेज हो गया था इसका वाटर में, जिसके कारण सारा ओशियन जो था वो हमारा मरकरी पॉल्यूशन हो गया था, जो फिश ने अडॉप्ट कर लिया था। और जो जिन भी लोगों ने ऐसी फिशेस को खाया जिनमें ये मरकरी एब्जॉर्ब थी, तो ऐसे लोग मर गए थे, जिनने लगभग 900 पीपल रिकॉर्ड में देखे गए हमने जिनकी डेथ हो चुकी थी, और 2.265 लोग जो थे इससे सफर हो गए। 2016 नवंबर में हम सभी को पता है दिवाली के आसपास एक स्मॉग एरिया दिल्ली पूरा स्मॉग से कवर हो गया था। तो ऐसा कहा गया कि जो फार्मर्स चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के जो फार्मर्स थे वो लोग अपने गन्ने की खेती का जो वेस्ट था उसे उन्होंने जलाया, जिसके कारण वो एयर पॉल्यूशन पूरे दिल्ली को कवर कर गया। और इसी दौरान जब दिवाली दशहरे पे पटाखे वगैरह फोड़े गए, क्रैकर्स के क्रैक होने के कारण पॉल्यूशन बढ़ गया, और वो लगभग स्मॉग के रूप में दिल्ली के ऊपर कवर कर गया। लगभग 1.2 मिलियन पीपल डेथ हो गई थी इसमें, और लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या आने लगी थी। तो 9 अगस्त 2019 को बर्निंग ऑफ अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन के जंगलों में आग लगी, और ऐसा कहा गया
कि वहां पर कल्टीवेशन लैंड के लिए, फार्म लैंड के लिए, फार्मिंग के लिए लैंड क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने अमेजन के एक मेजर एरिया को डिस्ट्रक्ट कर दिया है। लगभग 2.3 मिलियन एनिमल्स जो थे, जिनका रेजिडेंशियल एरिया था, वो जो जिनके हैबिटेट थी, वो लोग डेथ हो गई। 16 जून 2013 को केदारनाथ ट्रेजेडी आई। ये भी एक कंस्ट्रक्शन का ही हम बता रहे हैं कि वहां पे इतनी हाइट पर जाके कंस्ट्रक्शन का एरिया देखा जा रहा था। केदारनाथ ट्रेजेडी आई। लगभग 5,748 लोगों की डेथ हो गई। 4,550 विलेजेस अफेक्टेड हो गए। अभी भी केदारनाथ टोटल से उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा है। 10 फेब 2020 को ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही फायर, जंगलों में फायर लग गई थी, जिसकी वजह से 1 बिलियन एनिमल्स जो थे वो डेथ हो गई थी उन लोगों की। 2019 में कोविड-19 जो अभी तक पैंडेमिक के रूप में फैल चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग इससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 10.3 मिलियन डेथ जो है वो अभी भी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है और ये लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। 8 मई 2020 को विजाग गैस लीकेज ट्रेजेडी हुई इंडिया में, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। और ये एसएम गैस की लीकेज वेपर जो थी वो सारे में फैल गई, टैंक से लीक हो गई, जिसके कारण 13 पीपल डाई एट द सेम टाइम और लगभग 1000 पीपल जो थे वो बिकम सिक हो गए। एम्फॉन साइक्लोन occurred on 16 May 2020 वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में ये देखा गया। इसकी स्पीड लगभग 240 किलोमीटर पर आवर थी और लगभग 86 लोग की डेथ हुई वेस्ट बंगाल में इसके कारण। ये सब कुछ आंकड़े हैं जो मेरी पहुंच में थे, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। और ऐसे ही बहुत सी ट्रेजेडीज, बहुत से एम्फसाइजेस आज के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में आप देखने को मिल रहे हैं। ये वो बायोडाइवर्सिटी लॉस है जो इस दौरान हमने नोटिस किया। जो वाई आर्म है इस ग्राफ की वो दिखा रही है परसेंट ऑफ आर्टिकुलेट परसिस्टेंट और एक्स आर्म दिखा रही है फैक्टर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। किस किस लेवल पे हुआ? तो पहला बायोडाइवर्सिटी लॉस है, पहला क्लाइमेट चेंज है, दूसरा हैबिटेट चेंज है, तीसरा इन्वेजिव स्पीसीज है, देन एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, पॉपुलेशन है। तो क्लाइमेट चेंज में क्या है कि हमारा ये जो पहला ग्राफ है, पहला बार है, दिस बार इज फॉर टेरेस्ट्रियल, सेकंड बार इज फॉर मैराइन, थर्ड बार इज फॉर फ्रेश वाटर एंड फॉर अदर्स। क्लाइमेट चेंज कितना हुआ? लगभग टेरेस्ट्रियल एरिया में 4.3 के लेवल पे क्लाइमेट चेंज हुआ है। लगभग 5.0% क्लाइमेट चेंज हुआ है हमारा मैराइन एनवायरनमेंट का, और फ्रेश वाटर का 3.0 हुआ है, अदर्स का 3.0 हुआ है। हैबिटेट चेंज कितनी चीजें हो गई? हैबिटेट चेंज हो गई है 3.4%। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने अपनी हैबिटेट चेंज की है। लगभग 1.6% एनिमल्स ने मैराइन हैबिटेट चेंज हुई है। लगभग 1.8% फ्रेश वाटर एनिमल्स की हैबिटेट चेंज हुई है और अदर्स की हमारी 2.2 हुई है। अगर हम इन्वेजिव स्पीसीज देखें, कितनी स्पीसीज बाहर से आके इस समय इनगल्फ हो गई हैं, एरिया को कवर कर रही हैं, तो टेरेस्ट्रियल में लगभग 3% स्पीसीज आ गई हैं, बढ़ गई हैं। मैराइन में लगभग 2.1 स्पीसीज बढ़ गई हैं, फ्रेश वाटर में 3.1 बढ़ गई हैं और अदर्स में 3.2 बढ़ गई। अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो इसका भी परसेंटेज बढ़ा ही है। लगभग टेरेस्ट्रियल में 0.4% बढ़ा है, फ्रेश वाटर में 0.5% बढ़ा है, सॉरी मैराइन में 0.5% बढ़ा है और मैराइन में 0.4% बढ़ा है। पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ा है, टेरेस्ट्रियल में 0.2% बढ़ा है पिछले साल से, मैराइन में लगभग 1.3% बढ़ा है, फ्रेश वाटर में 2% पॉल्यूशन बढ़ गया है और अदर्स में 1.2। ये फैक्टर्स लॉस है, बायोडाइवर्सिटी लगातार हमारी लॉस होती चली जा रही है। अब इससे हम ओवरकम कैसे करेंगे? तो अर्थ इज हीलिंग इटसेल्फ। हम लोगों से तो अर्थ थक चुकी है, हम लोगों की हीलिंग उसकी समझ के बाहर आ गई है। तो कैसे कर रही है वो? रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर। उसने कोविड-19 जैसा औजार अपने लिए अपना लिया है, तो उसने अपने आप को रिकवर करना शुरू कर दिया है। तो रिकवर कर रहा है वो ओजोन लेयर को, डिप्लीशन खत्म हो गया है, जिसको हम सालों से डिफरेंट क्योटो प्रोटोकॉल से, अर्थ समिट से, डिफरेंट एरिया से हम इसके बारे में बहस कर रहे थे और सिर्फ ये ब्लैक एंड व्हाइट में रह जा रहा था। जो हीलिंग नहीं हो रही थी, डेवलप्ड कंट्रीज अनडेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे, अनडेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे, एक दूसरे को
टीका टपड़ी की जा रही थी, लेकिन ओजोन लेयर डिप्लीशन खत्म नहीं हो रही थी, जो कि कोविड-19 के आते के साथ ही हील हो गई। दिस शोज कि अर्थ इज हीलिंग इटसेल्फ। इसके साथ रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन लेवल हो गया। हमने पटाखों पे रोक लगा दी। वी आर नॉट गोइंग टू बर्न क्रैकर्स ऑन एनी फेस्टिवल। बट डज इट कंट्रोल द पॉल्यूशन लेवल ऑफ एयर? नो। बट एट दिस मोमेंट हम लोग के इसके बड़े सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सहारनपुर से हिमालय की चोटियां देखी जा रही हैं, नीला आकाश हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमारा पॉल्यूशन लेवल घटा रहा है। पॉल्यूशन कंटेंट हमें एयर में कम दिखाई दे रहे हैं। इम्प्रूव द प्योरिटी लेवल ऑफ वाटर, रिवर वाटर। यस, यहाँ हरिद्वार तक आते आते गंगा जी का पानी गदला हो जाता था, और यहाँ मेरठ गढ़ तक आते आते बिल्कुल ही इसका कलर चेंज हो जाता था। नो डॉल्फिन्स आर देयर, और जो नॉर्मल बायोटा था सारा का सारा डिस्टर्ब था। जू प्लैंक्टन्स गायब थे, और फ्लोरा एंड फौना गायब थे। फ्लोरा और फौना दोबारा फ्लरिश हो रहे हैं इस कोविड-19 के दौर में। एंड द लेवल ऑफ द प्योरिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग इटसेल्फ। और इसका स्तर जो है गंगा जी का, कह रहे हैं हरिद्वार में गंगा जी का पानी जो है एकदम साफ हो गया। मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं नहीं जा पाई, बट इट इज publishing in newspaper that the river water of Ganga Ji is getting pure. People moving towards Ayurveda. इस कंडीशन में अधिकतर लोग आयुर्वेद की तरफ मूव कर गए हैं और आयुर्वेदा के ऊपर एम्फोसाइज कर रहे हैं। So they are moving. Emission of greenhouse gases fallen. गैस, क्योंकि इंसान बाहर नहीं लग रहा है, एक तरह से वो कंडीशन आ गई है कि इंसान अपने ही जाल में फंस गया है और अपने ही बनाए हुए इस कंक्रीट के जंगल में वो कैद हो गया है। और एक तरह से ये हमारा जू हो गया है, एक चिड़ियाघर में हम बंद हो गए हैं और एनिमल फ्लरिश कर रहे हैं, एनिमल घूम रहे हैं इधर उधर। और ये दिखा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट भी अल्टीमेटली फॉल अप हो गया है। तो ये सब शो कर रहा है कि द टॉप मोस्ट एनिमल ऑफ दिस एनिमल किंगडम ऑफ दिस अर्थ, द ह्यूमन इज द मेन कॉज ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन। और वो डिस्ट्रक्ट कर रहा था, डिस्ट्रक्ट कर रहा है, और जब वो घर के अंदर है तो डिस्ट्रक्शन लेवल कम हो रहा है। एंड द अर्थ इज हीलिंग इटसेल्फ। तो अर्थ ने अल्टीमेटली आज सोच लिया है कि ये ह्यूमन इतना सेल्फिश है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। तो अल्टीमेटली वो उसे घर के अंदर बंद करने पे मजबूर है। कल हम बंदरों को बंद करते थे, आज बंदरों ने हमें बंद कर दिया है। पीपल बिकम अवेयर टुवर्ड एनवायरमेंट। हाँ, घर में बैठे हुए लोगों की थॉट्स चेंज हो रहे हैं, लोगों के सोचने की क्षमता चेंज हो रही है। तो आई थिंक कि the topmost animal, but from the topmost animal of this earth, the human, me also the human, जब मैं सोच पा रही हूँ कि कुछ हद तक एक पॉज लगाया है जिंदगी ने, इस अर्थ ने, इस नेचर ने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या हम सही थे, या क्या हम अर्थ को हील कर पाते। आज भी मदर नेचर, अर्थ हमें ये प्रूव कर रही है कि वो आज भी कितनी उसकी सोच हमसे बड़ी है और वो कितनी पावरफुल है कि वो जब चाहे अपने को हील कर सकती है। That's all about my presentation. These are the references from where I had taken these graphs, these texts. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, हाँ, तो अब हम बात करेंगे कुछ ट्रेजेडीज की जो इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। तो नाउ ऑन 26 मार्च 1986 को चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर यूक्रेन में हुआ। ये एक पावर स्टेशन पर सेफ्टी टेस्ट के प्रोटोकॉल ड्यूरिंग पावर स्टेशन पर सेफ्टी टेस्ट के दौरान लीकेज हो गया, जिसकी वजह से लगभग 1,25,000 पीपल जो थे ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। 2005 यूएन के अकॉर्डिंग 9,000 पीपल कैंसर के इस लीकेज के कारण होने वाले कैंसर के कारण
इफेक्ट में आ गए, कैंसरस हो गए। और चेरनोबिल के कारण ही वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। सेकेंड ट्रेजेडी की जो हम बात करेंगे, 11 मार्च 2011 को जापान में हुआ था, फुकुशिमा जापान में। ये लगभग अर्थक्वेक के कारण हुआ, अर्थक्वेक और सुनामी के कारण हुआ, क्योंकि इसमें जो था इसका इस न्यूक्लियर स्टेशन का जो कूलिंग सिस्टम था वो फेल हो गया, जिसके कारण लगभग 1,40,000 रेजिडेंशियल एरिया जो 20 किलोमीटर के रेडिया में आ रहे थे, वो सारे के सारे इफेक्ट में आ गए। और बायोडाइवर्सिटी भी इस लगभग 20 किलोमीटर रेडियाई की बायोडाइवर्सिटी भी वो भी इफेक्टिव हो गई। 7th सेंचुरी में इसी तरह के कुछ इफेक्ट्स आए, जैसे कि प्लेग आया यूरोप में, जैसे 100 मिलियन और पॉपुलेशन डेथ की तरफ चली गई। 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ यूरोप के रूप में 60% पॉपुलेशन डाई हो गई थी। इसी तरह से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया में हुआ, जिसके बारे में आप सभी को पता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस की लीकेज हो गई थी, और जिसके कारण लगभग 22,000 डेथ जो थी वो आ गई थी, और सालों तक लोग इसके इफेक्ट में थे। वहाँ पे जो बेबीज बर्थ ले रहे थे उनकी एनल ओपनिंग्स पर इफेक्ट था, उनकी नेजल ओपनिंग पर इफेक्ट था, और बहुत सारे म्यूटेशनल कंडीशंस उन बच्चों में पाए जा रहे थे। 1950 से 1960 में मिनामाटा डिजीज जापान में फैली। हम सभी को पता है कि मिनामाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय मरकरी पॉल्यूशन, पॉइजनिंग के कारण होती है। मिथाइल मरकरी जो थी जापान की एक केमिकल फैक्ट्री चिसो कॉर्पोरेशन से लीकेज हो गया था इसका वाटर में, जिसके कारण सारा ओशियन जो था वो हमारा मरकरी पॉल्यूशन हो गया था, जो फिश ने अडॉप्ट कर लिया था। और जो जिन भी लोगों ने ऐसी फिशेस को खाया जिनमें ये मरकरी एब्जॉर्ब थी, तो ऐसे लोग मर गए थे, जिनमें लगभग 900 पीपल रिकॉर्ड में देखे गए हमने, जिनकी डेथ हो चुकी थी, और 2.265 लोग जो थे इससे सफर हुए। 2016 नवंबर में हम सभी को पता है दिवाली के आसपास एक स्मॉग एरिया दिल्ली पूरा स्मॉग से कवर हो गया था। तो ऐसा कहा गया कि जो फार्मर्स चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के जो फार्मर्स थे वो लोग अपने गन्ने की खेती का जो वेस्ट था उसे उन्होंने जलाया, जिसके कारण वो एयर पॉल्यूशन पूरा दिल्ली को कवर कर गया। और इसी दौरान जब दिवाली दशहरे पे पटाखे वगैरह फोड़े गए, क्रैकर्स के क्रैक होने के कारण पॉल्यूशन बढ़ गया, और वो लगभग स्मॉग के रूप में दिल्ली के ऊपर कवर कर गया। लगभग 1.2 मिलियन पीपल डेथ हो गई थी इसमें, और लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या आने लगी थी। तो 9 अगस्त 2019 को बर्निंग ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न के जंगलों में आग लगी, और ऐसा कहा गया कि वहाँ पर कल्टीवेशन लैंड के लिए, फार्म लैंड के लिए, फार्मिंग के लिए लैंड क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने अमेज़न के एक मेजर एरिया को डिस्ट्रक्ट कर दिया है। लगभग 2.3 मिलियन एनिमल्स जो थे, जिनका रेजिडेंशियल एरिया था, वो जो जिनके हैबिटेट थी, वो लोग डेथ हो गई। 16 जून 2013 को केदारनाथ ट्रेजेडी आई। ये भी एक कंस्ट्रक्शन का ही हम बता रहे हैं कि वहाँ पे इतनी हाइट पर जाके कंस्ट्रक्शन का एरिया देखा जा रहा था। केदारनाथ ट्रेजेडी आई, लगभग 5,748 लोगों की डेथ हो गई, 4,550 विलेजेस अफेक्टेड हो गए। अभी भी केदारनाथ टोटल से उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा है। 10 Feb 2020 को ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही फायर, जंगलों में फायर लग गई थी, जिसकी वजह से 1 बिलियन एनिमल्स जो थे वो डेथ हो गई थी उन लोगों की। 2019 में कोविड-19 जो अभी तक पैंडेमिक के रूप में फैल चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग इससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 10.3 मिलियन डेथ जो है वो अभी भी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, और ये लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। 8 मई 2020 को विजाग गैस लीकेज ट्रेजेडी हुई इंडिया में, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में, और ये एसएम गैस की लीकेज वेपर जो थी वो सारे में फैल गई, टैंक से लीक हो गई, जिसके कारण 13 पीपल डाई एट द सेम टाइम, और लगभग 1000 पीपल जो थे वो बिकम सिक हो गए। एम्फॉन साइक्लोन occurred on 16 मई 2020 वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में ये देखा गया। इसकी स्पीड लगभग 240 किलोमीटर पर आवर थी,
और लगभग 86 लोग की डेथ हुई वेस्ट बंगाल में इसके कारण। ये सब कुछ आंकड़े हैं जो मेरी पहुंच में थे, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। और ऐसे ही बहुत सी ट्रेजेडीज, बहुत से एम्फसाइजेस आज के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में आप देखने को मिल रहे हैं। ये वो बायोडाइवर्सिटी लॉस है जो इस दौरान हमने नोटिस किया। जो वाई आर्म है इस ग्राफ की वो दिखा रही है परसेंट ऑफ आर्टिकुलेट परसिस्टेंट, और एक्स आर्म दिखा रही है फैक्टर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। किस किस लेवल पे हुआ? तो पहला बायोडाइवर्सिटी लॉस है, पहला क्लाइमेट चेंज है, दूसरा हैबिटेट चेंज है, तीसरा इन्वेजिव स्पीसीज है, देन एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, पॉपुलेशन है। तो क्लाइमेट चेंज में क्या है कि हमारा ये जो पहला ग्राफ है, पहला बार है, दिस बार इज फॉर टेरेस्ट्रियल, सेकंड बार इज फॉर मैराइन, थर्ड बार इज फॉर फ्रेश वाटर एंड फॉर अदर्स। क्लाइमेट चेंज कितना हुआ? लगभग टेरेस्ट्रियल एरिया में 4.3 के लेवल पे क्लाइमेट चेंज हुआ है। लगभग 5.0% क्लाइमेट चेंज हुआ है हमारा मैराइन एनवायरनमेंट का, और फ्रेश वाटर का 3.0 हुआ है, अदर्स का 3.0 हुआ है। हैबिटेट चेंज कितनी चीजें हो गई? हैबिटेट चेंज हो गई है 3.4%। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने अपनी हैबिटेट चेंज की है। लगभग 1.6% एनिमल्स ने मैराइन हैबिटेट चेंज हुई है। लगभग 1.8% फ्रेश वाटर एनिमल्स की हैबिटेट चेंज हुई है, और अदर्स की हमारी 2.2 हुई है। अगर हम इन्वेजिव स्पीसीज देखें, कितनी स्पीसीज बाहर से आके इस समय इनगल्फ हो गई हैं, एरिया को कवर कर रही हैं, तो टेरेस्ट्रियल में लगभग 3% स्पीसीज आ गई हैं, बढ़ गई हैं। मैराइन में लगभग 2.1 स्पीसीज बढ़ गई हैं, फ्रेश वाटर में 3.1 बढ़ गई हैं, और अदर्स में 3.2 बढ़ गई हैं। अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो इसका भी परसेंटेज बढ़ा ही है। लगभग टेरेस्ट्रियल में 0.4% बढ़ा है, फ्रेश वाटर में 0.5% बढ़ा है, सॉरी मैराइन में 0.5% बढ़ा है, और मैराइन में 0.4% बढ़ा है। पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ा है, टेरेस्ट्रियल में 0.2% बढ़ा है पिछले साल से, मैराइन में लगभग 1.3% बढ़ा है, फ्रेश वाटर में 2% पॉल्यूशन बढ़ गया है, और अदर्स में 1.2। ये फैक्टर्स लॉस है, बायोडाइवर्सिटी लगातार हमारी लॉस होती चली जा रही है। अब इससे हम ओवरकम कैसे करेंगे? तो अर्थ इज हीलिंग इटसेल्फ। हम लोगों से तो अर्थ थक चुकी है, हम लोगों की हीलिंग उसकी समझ के बाहर आ गई है। तो कैसे कर रही है वो? रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर। उसने कोविड-19 जैसा औजार अपने लिए अपना लिया है, तो उसने अपने आप को रिकवर करना शुरू कर दिया है। तो रिकवर कर रहा है वो ओजोन लेयर को, डिप्लीशन खत्म हो गया है, जिसको हम सालों से डिफरेंट क्योटो प्रोटोकॉल से, अर्थ समिट से, डिफरेंट एरिया से हम इसके बारे में बहस कर रहे थे, और सिर्फ ये ब्लैक एंड व्हाइट में रह जा रहा था। जो हीलिंग नहीं हो रही थी, डेवलप्ड कंट्रीज अनडेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे, अनडेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे, एक दूसरे को टीका टपरी की जा रही थी, लेकिन ओजोन लेयर डिप्लीशन खत्म नहीं हो रही थी, जो कि कोविड-19 के आते के साथ ही हील हो गई। दिस शोज कि अर्थ इज हीलिंग इटसेल्फ। इसके साथ रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन लेवल हो गया। हमने पटाखों पे रोक लगा दी। वी आर नॉट गोइंग टू बर्न क्रैकर्स ऑन एनी फेस्टिवल, बट डज इट कंट्रोल द पॉल्यूशन लेवल ऑफ एयर? नो। बट एट दिस मोमेंट हम लोग के इसके बड़े सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सहारनपुर से हिमालय की चोटियां देखी जा रही हैं, नीला आकाश हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमारा पॉल्यूशन लेवल घटा रहा है, पॉल्यूशन कंटेंट हमें एयर में कम दिखाई दे रहे हैं। इम्प्रूव द प्योरिटी लेवल ऑफ वाटर, रिवर वाटर। यस, यहाँ हरिद्वार तक आते आते गंगा जी का पानी गदला हो जाता था, और यहाँ मेरठ गढ़ तक आते आते बिल्कुल ही इसका कलर चेंज हो जाता था। नो डॉल्फिन्स आर देयर, और जो नॉर्मल बायोटा था सारा का सारा डिस्टर्ब था। जू प्लैंक्टन्स गायब थे, और फ्लोरा एंड फौना गायब थे। फ्लोरा और फौना दोबारा फ्लरिश हो रहे हैं इस कोविड-19 के दौर में, एंड द लेवल ऑफ द प्योरिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग इटसेल्फ। और इसका स्तर जो है गंगा जी का, कह रहे हैं हरिद्वार में गंगा जी का पानी जो है एकदम साफ हो गया। मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं नहीं जा पाई, बट इट इज publishing in newspaper that the river water of Gangaji is getting pure. People moving towards Ayurveda. इस कंडीशन में
अधिकतर लोग आयुर्वेद की तरफ मूव कर गए हैं और आयुर्वेदा के ऊपर एम्फोसाइज कर रहे हैं। So they are moving. Emission of greenhouse gases fallen. गैस, क्योंकि इंसान बाहर नहीं लग रहा है, एक तरह से वो कंडीशन आ गई है कि इंसान अपने ही जाल में फंस गया है और अपने ही बनाए हुए इस कंक्रीट के जंगल में वो कैद हो गया है। और एक तरह से ये हमारा जू हो गया है, एक चिड़ियाघर में हम बंद हो गए हैं और एनिमल फ्लरिश कर रहे हैं, एनिमल घूम रहे हैं इधर उधर। और ये दिखा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट भी अल्टीमेटली फॉल अप हो गया है। तो ये सब शो कर रहा है कि द टॉप मोस्ट एनिमल ऑफ दिस एनिमल किंगडम ऑफ दिस अर्थ, द ह्यूमन इज द मेन कॉज ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन। और वो डिस्ट्रक्ट कर रहा था, डिस्ट्रक्ट कर रहा है, और जब वो घर के अंदर है तो डिस्ट्रक्शन लेवल कम हो रहा है एंड द अर्थ इज हीलिंग इटसेल्फ। तो अर्थ ने अल्टीमेटली आज सोच लिया है कि ये ह्यूमन इतना सेल्फिश है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। तो अल्टीमेटली वो उसे घर के अंदर बंद करने पे मजबूर है। कल हम बंदरों को बंद करते थे, आज बंदरों ने हमें बंद कर दिया है। पीपल बिकम अवेयर टुवर्ड एनवायरमेंट। हाँ, घर में बैठे हुए लोगों की थॉट्स चेंज हो रहे हैं, लोगों के सोचने की क्षमता चेंज हो रही है। तो आई थिंक कि the topmost animal, but from the topmost animal of this earth, the human, me also the human, जब मैं सोच पा रही हूँ कि कुछ हद तक एक पॉज लगाया है जिंदगी ने, इस अर्थ ने, इस नेचर ने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या हम सही थे, या क्या हम अर्थ को हील कर पाते। आज भी मदर नेचर अर्थ हमें ये प्रूव कर रही है कि वो आज भी कितनी उसकी सोच हमसे बड़ी है और वो कितनी पावरफुल है कि वो जब चाहे अपने को हील कर सकती है। That's all about my presentation. These are the references from where I had taken these graphs, these texts. Thank you.